आज हमारा टॉपिक जो है केमिस्ट्री का 9th क्लास से 7.5 लास्ट टॉपिक है ये केसर रेन और उसके असरात। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये देखते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है ये टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से या ऑब्जेक्टिव इसके अंदर एक ऐसी है जो अहम है। तो एक बच्चे का कमेंट था कि पंजाबी में आप ना बोलें, आप उर्दू में पढ़ाएं। तो मैं ये कहना इसलिए चाहता हूँ खासकर कि पंजाबी में आपको समझ आसानी से आएगी, ज़्यादा देर तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, रिपीट करने पर इजीली याद आएंगी। ठीक है। अब मसला ये है कि आपने फेवरेट फिल्म पूछ लो किसी बच्चे से, कैरी ऑन जट्टा 3, कैरी ऑन जट्टा 2, फलां सिंगर पूछ लो सिद्धू मूसेवाला। ठीक, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਤੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ 8 ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੀਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ 5927 ਆ। ਠੀਕ ਆ। 5927 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ? 1859 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1927 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਦਾ। ਲੋ ਇਹ 5927 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 4442 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 4442। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਜਿਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਡੈਸੀਮਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ਼ਾਰੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ 4442। ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਜਿਟ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, PH ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆਵੇ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ। एसिड रेन और इसके असरात, तारीफ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ एसिड रेन ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, डेफिनेशन ਇਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जब बारिश के पानी की, बारिश का पानी, पानी किहड़े दी गल आ? पानी दी pH नहीं, यह याद कर लेनी, पानी दी pH होर हुंदी आ। बारिश के पानी की pH, तो ये pH जो वर्ड है ये हम देखते हैं क्या है। ये pH कितनी होवे? 4.2 से लेकर 4.4 तक। ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣੇ दस के हटिया 4442 याद कर लो, अपनी मोटरसाइकिल का नंबर समझ गई। बाद दे विच इशारिया ला दिओ, PH याद रह जाएगी। 4.2 से लेकर 4.4 के दरमियान हो जब बारिश के पानी की, ये याद रखना डेफिनेशन च, पानी केड़ा वा? बारिश वाला, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? एसिड रेन कहते हैं। ठीक, हुण PH का लफज आया, PH की आ? PH समझ लो एक 0 तो लैके एक स्केल आ 14 तक। ठीक, इस तरह स्केल बनया वा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट आ 0 ਤੋਂ 7 तक, ये हैगा एसिडिक चीज़ां होणगियां। जिहड़ी चीज़ तेजाबी या एसिडिक होएगी वो PH रेंज होएगी ਉਹਦੀ 7 तक या 6.9 तक कह लो, 0 ਤੋਂ 7। और जिहड़ी चीज़ बेस होएगी वो होएगी 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ठीक, और 7 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 7 ਜਿਹੜਾ न्यूट्रल होएगा। न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक होएगी चीज़, ना बेसिक होएगी, ना बेस होएगी ना एसिड होएगी। जिस तरह पानी की एग्जाम्पल आ, पानी की जिहड़ी आ सही पानी जिहड़ा ओहदी 7 हुंदी आ, न्यूट्रल हुंदा। अच्छा, उस तो अगे हुण देखिए इहदे विच की आ चीज़ मेन वजाहत इहदी की आ इस गल दी।
फॉसल फ्यूल्स के जलाने से बहुत सी नुकसानदेह गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं। ਹੁਣ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ। ਫੋਸਲਸ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਫੋਸਲਸ ਪੈਲੇਓਂਟੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਬਿਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਬਿਓਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਫੋਸਲ ਕੀ ਆ। ਫੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੈਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਕੋਇਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਗੈਸ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਫਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कोयला, गैस, फ्यूल्स, पेट्रोलियम वगैरह में। फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से बहुत सी नुकसानदेह गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं और इन्हें खासकर केड़ी है SO2 और NO2। SO2 और NO2 गैसां का जिक्र कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है लेकिन एसिड रेन के अंदर ठीक SO2 और NO2 का ही जिक्र आ। जब हवा में मौजूद नमी पानी के कतरे यानी कि नमी टाइप जिहड़े हुंदे आ, जिस तरह ओस हुंदी आ, कह लो नमी से मिलती है, यह गैसां जो नमी ना मिलनगियां बारिश के कतरे नमूदार होते हैं। ये कतरे फिर एसिड रेन की सूरत में जमीन पर गिरते हैं। ये जो ड्रॉप बनते आ इन्हां नाल मिल के नमी नाल SO2 और NO2 का रिएक्शन होएगा। ये बाद की बना देंगे तेजाबी शक्ल च चल जाएंगे। और रिएक्शन किस तरह वा 2SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड आ, ऑक्सीजन ना रिएक्शन होएगा, 2SO3 बन जाएगा। 2SO3 जड़ा वा हैगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ सल्फर ट्राईऑक्साइड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ सल्फर ट्राईऑक्साइड फिर ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫੌਰੀ और H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगली मिसाल ਜਿਹੜੀ ਆ NO2 ਦੀ ਆ। SO2 ਦੀ ਹੋ गई, NO2 जो पानी ਨਾਲ नमी ਨਾਲ रिएक्शन होएगा ਇਹਦਾ एक तो बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 और एक बनेगा यह जड़ा ना HNO, ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 है दे नीचे गलती हो गई, देख रहा सी मैं कि लिखा नहीं गया। अच्छा नाइट्रस एसिड आ, यह नाइट्रस एसिड जड़ा अनस्टेबल हुंदा है दोबारा HNO3 च ही बदलदा। इस ट्रेन के असरात की आ, यह वजाहत हो गई सारी टॉपिक की। होने के असरात आ किहड़ियां चीज़ां नूं नुकसान दिंदी आ। मसलन इस ट्रेन जिहड़ी आ इहदे नुकसानात की आ, असरात इहदे की आ। एक तो मिट्टी ते आ, जमीन की मिट्टी, पौधियां ते, फिर समुद्री हयात और इंसान की बनाई हुई इमारतों। यह चार चीज़ां ते नुकसान आ इन्हां दे। मिट्टी नूं की नुकसान हुंदा, फिर मिट्टी की वजह तो एक तो मिट्टी की अंदर जिहड़े पौधे जम्मणगे फिर उत्ते इफैक्ट होएगा, एक डायरैक्ट इफैक्ट भी आ पौधों ते, फिर समुद्री हयात 3 नंबर और 4 चौथा असर किहनां ते इमारतां ते। हुण इन्हां नूं कल्ले कल्ले पॉइंट दे के असीं पढ़ लैंदे आ। इस ट्रेन जमीन की मिट्टी को तेजाबी बना देती है, यानी कि उहदा जमीन की मिट्टी जिहड़ी आ वैसे पौधों लई सही जिहड़ी चाहीदी आ वो तकरीबन 6 तो 7 के दरम्यान उहदी pH चाहीदी हुंदी आ। ये उहनूं 6 तो थल्ले ले आएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुद ਦੀ pH 4.2 ਤੋਂ 4.4 ਤੱਕ ਆ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ठीक, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ pH कम हो जाएगी। ये मिट्टी में मौजूद पौधों के गजाई अज्जा, हाँ ਹੁਣ मिट्टी के अंदर न्यूट्रीएंट ਹੁੰਦੇ आ पौधों ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हल कर लेगी गजाई अज्जा ਨੂੰ। और फिर वो बारिश के पानी के साथ बहकर मिट्टी को इनसे महरूम कर देते। और फिर जो बारिश होएगी वो हल हो गया ਹੁਣ इस ट्रेन ਨਾਲ। दोबारा जो बारिश आई वो बारिश ਉਹਨੂੰ खत्म कर देगी, महरूम कर देगी मिट्टी ਨੂੰ न्यूट्रीएंट तो। मिट्टी जो न्यूट्रीएंट गए ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा बहुत से पौधे तेजाबी मिट्टी में या तो उग नहीं सकते। ਹੁਣ तेजाबी मिट्टी या एसिडिक मिट्टी ਉਹਦੇ अंदर पौधे एक तो उग नहीं सकते, अगर उगणगे तो नशोनुमा नहीं होएगी, उन्हों की ग्रोथ जी वो घट जाएगी। इस तरह पौधे और दूसरी नबातात को नुकसान पहुंचाती है। पौधे और दूसरियां जिहड़ियां भी नबातात आ, मसलन नबातात पौधे वाली चीज़ां, इहदे जंगलात नूं नुकसान खासकर बहुत मेन आ। और पौधों नूं नुकसान जिहड़ा वा मेनली पत्ते जिहड़े आ ना, जिहड़े पीले हो जाते आ या ब्राउन किस्म के हो जाते आ, पत्तियां नूं नुकसान हुंदा। फिर ज़ाहरा पत्तियां ते नुकसान होएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसैस रुकेगा, उन्हां खुराक बनाने का प्रोसैस रुकेगा। उस वजह तो फिर की होएगा नशोनुमा ते इफेक्ट आएगा।
ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਪੜਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐंट जज़ब नहीं होंगे प्रॉपर। इस किस्म के नुकसानात आए थे। इस ड्रेन पानी के ज़खायर को इतना तेजाबी बना देती है, पानी के ज़खायर मसलन झीलों, दरिया वगैरह, समुद्रां का पानी, इसमें आबी हयात यानी कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जानदार रह रहे ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। इस वजह से बहुत सी झीलें, नदियां और तालाब मछलियों से खाली हो गए हैं। मछलियां की ग्रोथ जी आ जाती लगेगी, नुकसान होएगा, पानी एसिडिक हो जाएगा, तेजाबी पानी हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी ਉਹਦੀ। जबकि इन्हों 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ वाली पीएच चाहिए आ मछलियां ਨੂੰ प्रॉपर ग्रोथ ਲਈ, जिंदा रहने ਲਈ। ਹੁਣ इस ड्रेन खुश्क तेजाबी ज़रात का जमना, इस ड्रेन हो जाए या उस ਜਿਹੜੇ पार्टिकल ने एसिडिक ਉਹ जम जान इमारतां ते, कारां ते, मुजस्मियां ते, तामीरात मसलन दूसरी ਜਿਹੜੀਆਂ कंस्ट्रक्शनस होर टाइप ਦੀਆਂ ਨੇ, और दाती अशिया, ठीक है, जिन्ने ना लिखे आ इमारतां, कारां वगैरह ते मुजस्मियां ते, इन्हां सारियां ते की आ उन्होंने नुकसान पहुंचाती आ इस ड्रेन। और इसकी सब तो बड़ी मिसाल जी है ताज महल। ताज महल जिहड़ा मार्बल आ, वाइट मार्बल आ सारा, ते ओहदा रंग इन्हें कर दिता, कह लो पीला टाइप, येलो कर दिता या ब्राउन टाइप कर दिता वा वाइट तो। सब तो ज्यादा नुकसान मार्बल वालियां जिहड़ियां इमारतां उन्हां नूं मेनली हुंदा। और ਜਿਹੜੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟਾਪਿਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਖਾਸ ਕਰ ਅਹਿਮ ਆ। ਹੁਣ 44-42 ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦੀ।